it's proper? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Last time chemical classification of matter. Hope you remember this thing. We have studied what is pure substance. We have studied what are mixtures. Then in pure substance, we discussed about solutions. And in this mixtures, we have discussed about homogeneous and in pure substances, we discussed elements and compounds. And in mixtures, we discussed homogeneous mixtures. Now heterogeneous is remaining. So I'm starting with that. Any problem with my voice? No, ma'am. Okay. As I discussed in homogeneous mixture, that the two components mix with each other, two or more components mix with each other in such a way that we are not able to see the two components separately. That means solute and solvent are not visible to us separately. They become one. The uniformity is there in the composition as well as in the properties. But here in heterogeneous mixture, you will be able to have the presence of solute either at microscopic level or at macroscopic level, both levels. Like just we have already discussed that it is of two kinds, colloids and suspension. Colloids like milk. In milk, you are not able to see the solute separately. Your milk contains water as a solvent, and in this water component, you will see that many this lactose sugar is there. There is this protein is there. So many other components are also there. As food is as milk is a complete diet, you know. So complete food, you know, so many components are there which are present in the milk. But if you will see protein, casein is present, that is present, which make it colloid. Lactose is a sugar which will not make it colloid. It's protein make it colloid. Like starch and water, your gum, अपने गम जो यूज करते हैं ना चिपकाने के लिए, that gum, Fevicol, all these are colloids. Here the solute particles are little larger than the particles of what present in true solution. So here, if you will see, they are in a true solution, the particles are very small that we are not able to see even with microscope. Here you will not be able to see with your naked eyes, but you will be able to see with the help of very high level microscope. Here the particles are so larger that you will be able to see with your naked eye. Like mud, kichad, water and soil, water and sand is easily visible to us. They are in the mud if we see on the road. If we dissolve soil in water, then after some time soil will separate down. So here the two components are visible to us with the naked eyes. Here though the solute is not visible, yet the solution is not transparent as that of the true solution, because in true solution the particles are very, very small. Here the particles, if you will see, they are in true solution, the size is 1 nanometer to 100 nanometer. Here 100 nanometer to 1000 nanometer, and here larger than 1000 nanometer. Nanometer is what? 1 nanometer equals to 1 into 10 to the power minus 9. So here in true solution 1 to 100 nanometer, here 100 to 1000 nanometer, here larger than 1000 nanometer. The size is larger in the particles of suspension, then smaller than in colloids, and then very, very small tiny particles are there in true solution.
This is, I'm just comparing these two with the homogeneous solutions also. So here, if we see colloids, have you seen that during summer, during winter season, if light enters some hole into your room, you find that dust particle move in a zigzag motion. So there you will find that dust particle are making the air as a colloidal solution. आप अगर ये इसमें भी देखा होगा कि फॉरेस्ट में कैनोपी से अगर हम देखें तो यू विल सी दैट एयर इज अ कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल सॉल्यूशन वेयर द डस्ट पार्टिकल मूव इन अ zigzag मोशन. देखा है कभी आपके रूम में कहीं से होल से सनलाइट आ रही होती है तो आपको सनलाइट का पाथ दिखता है और उसमें पार्टिकल्स हिलते हुए दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, zigzag मोशन में चल रहे होते हैं. Yes, That is ma'am. because the dust particle, because of dust particle, the air is a colloidal solution there. So this zigzag motion of particles is called as Brownian. Robert Brown has given about idea about this Brownian motion. So in his honor, the name is given as Brownian motion. It was studied first by Robert Brown. So the particle, suppose this is the particle, it moves like this in a zigzag here. ये यहाँ से यहाँ आया, फिर इस तरफ आया, इस तरफ आया. चलते हैं ऐसे 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 ऐसे. ये पार्टिकल बहुत फास्ट चलते हैं. मैंने एक पार्टिकल शो किया है. So zigzag motion of particles is known as Brownian motion. And because of this zigzag motion or Brownian motion, the particles are able to scatter the light. What is this scattering of light? Anyone? आप चल रहे हैं बेटा, आप सीधे सीधे चल रहे हैं, आप सीधे सीधे चल रहे हैं और मैं बीच में आई और ऐसे ऐसे मूव कर रही हूँ, तो will your path be hindered or not? Yes, your path ma'am. will be hindered. Your path will be hindered, and what will happen? You will change the direction of your movement. Particle light is moving like this. Light is moving straight, and the particles are moving in a zigzag motion. The the light gets scattered, means it changes its direction of motion, its direction of propagation, है ना? तो उसको बोलते हैं स्केटरिंग. तो लाइट स्केटर होती है, लाइट zigzag मोशन के कारण स्केटर होती है. तो क्या होता है, हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है, हमें रास्ता दिखता है कि किस रास्ते से, सोल्यूशन के किस हिस्से से लाइट जा रही है. जैसे कि कोने से, किसी रूम के किसी कोने से या होल से, खिड़की के होल से, खुली हुई जगह से लाइट अंदर आती है तो आपको एयर में पार्टिकल्स दिखते हैं, तो आपको लाइट दिखती है. ऐसे अभी ट्रांसपेरेंट है, आपकी खिड़की खुली हुई है, फिर भी आपको लाइट आते हुए नहीं दिखती है. क्या लाइट का रास्ता दिख रहा है क्या, किस रास्ते से आ रही है? नहीं, इट जस्ट ट्रांसमिट थ्रू द ग्लास, है ना? तो अगर हमारा सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन होगा, सपोज this is sugar solution, and in another beaker I have taken colloidal solution of starch. यहाँ गम ले लिया आपने, उसमें शुगर है. Here you have taken starch. स्टार्च सबके घर पे होता है, कॉर्नफ्लोर सबके घर पे है, अरारोट सबके घर पे है ना, तो उसका सोल्यूशन बनाया जाता है. तो स्टार्च, आई एम टॉकिंग अबाउट डाइल्यूट सोल्यूशन, नॉट वेरी थिक सोल्यूशन. अगर आपने लाइट एक अंधेरे कमरे में दोनों को रखा, if you have kept both the solution in a dark room and you have passed the light through a torch, आपने एक टॉर्च लगाई है और लाइट पास करने की कोशिश कर रहे हैं, शुगर सोल्यूशन से लाइट पास हो जाएगी, आपको यहाँ से रास्ता नहीं दिखेगा उसका. योर सोल्यूशन विल नॉट गेट इल्यूमिनेटेड. वो चमकता हुआ उसमें से लाइट को जाते हुए आप नहीं देख सकते. लाइट जस्ट पास थ्रू इट एज इट पासेस थ्रू द ग्लास. जैसे कि कांच से पास हो जाती है, विंडो पेन से पास हो जाती है, ऐसे पास हो जाएगी ट्रांसपेरेंट मीडियम में. पर यहाँ से टॉर्च से लाइट पास करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड दैट द पाथ ऑफ लाइट, सपोज द सॉल्यूशन इज up here, the path of light is visible to you.
आपको दिखेगा कि सोल्यूशन के इस हिस्से से लाइट जा रही है उस तरफ, आपका सोल्यूशन इल्यूमिनेट होगा। इस इफेक्ट, इस चीज को बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। This phenomenon is called as Tyndall effect. When light is passed through the colloidal solution or stable suspension, the stable dilute suspension, then we will find that due to Brownian motion, the particles scatter the light. This scattering of light is known as Tyndall effect. Because of Tyndall effect, we will be able to see the path of the light through the solution and the solution gets illuminated. Am I clear with this? Yes, किसी को ma'am. हिंदी में किसी के लिए, अगर आप ट्रू सॉल्यूशन से होमोजेनियस सॉल्यूशन से लाइट पास करते हैं तो लाइट उसी तरह से जाती है जिस तरह से कि विंडो पेन से ग्लास पेन से जा रही हो, बिल्कुल हमें दिखती नहीं है, ट्रांसपेरेंट, जैसे एयर से लाइट जा रही है हमें दिख थोड़ी ना रही है। पर अगर आपकी लाइट किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से या सस्पेंशन स्टेबल हो, उसमें आपके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हुए हो, तो आप पाएंगे कि लाइट की स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग होने के कारण क्या होता है कि हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है, रास्ता दिखता है किस हिस्से से लाइट जा रही है, उतना हिस्सा सोल्यूशन का इल्यूमिनेट हो जाता है। इल्यूमिनेट मीन्स रोशन हो जाता है। ठीक है, वॉइस से प्रॉब्लम किसी को? आई एम ऑडिबल? एम आई Yes, ऑडिबल? yes, ma'am. So you will see that कि जो सोल्यूशन है इल्यूमिनेट हो जाता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल जिगजैग मोशन में है तो लाइट की स्कैटरिंग होती है। दिस इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट। और टिंडाल इफेक्ट जो है इट इज शोन बाय कोलाइड्स एज वेल एज सस्पेंशन, बट सस्पेंशन के केस में स्टेबिलिटी होगी तो ही, अगर सस्पेंशन के पार्टिकल नीचे बैठ गए हैं तो फिर आपका टिंडाल इफेक्ट सस्पेंशन नहीं शो करते हैं। So first property of colloids is what their particles are smaller than the particles of the suspension, but larger than the particles of that of the true solutions or homogeneous mixtures. Second property is that the particles scatter the light as they are in the continuous Brownian motion. That means they show the Tyndall effect. ठीक है, दिस कोलाइड्स आर स्टेबल। अब अभी हमें जब 11th में पढ़ते हैं तो हमें स्टेबल बोलते हैं, 9th में पढ़ते हैं तो स्टेबल बोलते हैं, पर जब आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 12th में, देयर यू विल कम टू नो दैट कोलाइड्स मे नॉट बी स्टेबल ऑल्सो। लाइक अगर आपका मिल्क है, आप कितने घंटे रख सकते हैं बॉईल करने के बाद भी, बिना फ्रिज के, बिना रेफ्रिजरेटर के? हार्डली आप 20 to 24 आवर्स रख सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। गर्मी होगी तो 20 आवर्स भी मुश्किल से रख पाएंगे। तो देयर द सोल्यूट पार्टिकल्स सेपरेट आउट, वहां पर डिस्पर्स फेस। अब यहाँ पर हम सोल्यूट नहीं बोलते हैं, जिस चीज को हम ट्रू सोल्यूशन में सोल्यूट बोलते हैं उसे यहाँ हम सोल्यूट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेस। Your colloid contains the two components. जैसे ट्रू सोल्यूशन में दो कंपोनेंट थे, एटलीस्ट दो कंपोनेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। हियर यू आर हैविंग two components. One is viscous, one is disperse phase, another is dispersion medium. जिसको हम वन सोल्यूट कहते हैं वो यहाँ पर डिस्पर्स फेज कहलाता है। द सोल्यूट पार्टिकल्स विच आर डिस्पर्स इन द डिस्पर्शन मीडियम, विच आर डिस्पर्स का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर, है ना, तो स्केटर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर। तो वो पार्टिकल्स जो भी आपके डिस्पर्शन मीडियम में प्रेजेंट हैं, डिसॉल्व स्टेट में हम बोल सकते हैं, पर डिसोल्यूशन यहाँ नहीं, हम डिस्पर्शन बोलते हैं। तो डिस्पर्स फेज इज जस्ट लाइक सोल्यूट
कंपोनेंट इन द ट्रू सोल्यूशन। सल्यूट जैसा कंपोनेंट है जो ट्रू सोल्यूशन में होता है, वही यहाँ पर डिस्पर्स फेज कहलाता है। और डिस्पर्स फेज जो है डिस्पर्शन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरी तरह डिस्पर्स होता है, स्कैटर्ड होता है ना। तो जो ये डिस्पर्स फेज है ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है, लाइक सल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में होता है। डिस्पर्शन मीडियम इज इन large quantity. The component which is present in a smaller quantity and is just like the solute component of the true solution is dispersed phase. It is distributed all over in the another component which is solvent like component, that is dispersion medium. Like starch solution की अगर हम बात करें तो starch is dispersed phase and water is dispersion medium. स्टार्च सॉल्यूशन में स्टार्च डिस्पर्स फेज है, वाटर इज द डिस्पर्शन मीडियम। जो आप एयर देखते हैं, एयर में आपका जो वो है डस्ट, वो डस्ट या अगर स्मोक मिल जाए तो स्मोक और डस्ट दे मेक इट कोलाइड। स्मोक अपने आप में एक कोलाइड है, तो डस्ट जो है डस्ट के कारण वो डस्ट विल बी डिस्पर्स फेज एंड योर एयर जो गैसेस हैं दे विल बी डिस्पर्शन मीडियम। बट एयर को यूजुअली हम होमोजेनस मिक्सचर में रखते हैं, कोलाइड में नहीं रखते हैं। दूसरी चीज, अगर आप वो देखेंगे चीज, चीज आपका ये क्या बोलते हैं, मिल्क, जेली, all these are what colloids. So they have the disperse phase and dispersion medium, two components. Now so here we say that the colloids are stable. Yes, they are stable than that of the suspension. But you keep in your mind, जब 12th में सरफेस केमिस्ट्री पढ़ो तो ये मत बोलना मैम ने तो बोला था स्टेबल होते हैं, नहीं। वी हैव टू काइंड्स ऑफ colloids. Some are stable for long time, some are stable for short time. But जो शॉर्ट टाइम के लिए स्टेबल होते हैं तब हम सरफेस केमिस्ट्री में उनको अनस्टेबल कहते हैं, ठीक है। सो बट दे आर स्टेबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ दी they are stable as compared to that of the suspension. Now what is suspension? Now suspension, you see here the two components are visible to us separately. Like this chalk, I make its dust and pour in water. Try to dissolve it in water. Here chalk and water. If chalk I add to the water, you know very well that chalk powder will settle down. It will settle down. Soil, sand, ऐसी जो भी चीज हम डालेंगे जो सेटल डाउन हो जाएगी, those are called as suspension. आपको सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है, तो you are able to see the two components separately. So such solutions are called as suspensions. They will be showing Tyndall effect if they are stable. अगर आप इसकी stability maintain रखते हैं किसी तरह, जैसे कि आपने देखा होगा बोर वाटर से या नल से जो पानी आता है वो कभी कभी धुंधला आता है, इट इज लिटिल बिट थोड़ा सा मटमेला सा आता है। that soil which is dissolved there, it will not separate down, it will not settle down by itself जब तक कि आप उसमें एलम डाल के लोडिंग ना करवाएं, तो वो जो है that is stable. So such suspension will show you this Tyndall effect because of Brownian motion of particle. Otherwise अगर आपका जैसे chalk है, mud है, soil है, sand है, all will settle down. This is all about your suspension and colloid. Now heterogeneous mixture, it is not necessary कि हमारे पास liquid form में ही हो। अगर आप heterogeneous mixtures को देखें like iron और sulfur yellow color का होता है, sulfur is yellow in color
आयरन सबको मालूम है, आयरन डस्ट जो है सिल्वर ग्रे, नया नया होगा तो सिल्वर ग्रे, और रखा हुआ होगा तो ऑब्वियसली ब्लैकिश होगा या ब्राउनिश होगा ड्यू टू दिस करोजन. So iron is having, में नया पाउडर. So if you take the two components, दोनों मिक्स हो गए हों तो आपको येलो कलर का सल्फर पाउडर इजीली दिखता है और आयरन आपको अलग दिखता है अगर दोनों मिक्स हो गए हों. तो हियर द टू कंपोनेंट्स आर विजिबल सेपरेटली. दोनों सॉलिड है, दोनों ही आपको अलग अलग दिख रहे होते हैं. आपने ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा क्लास 9 में. अगर हम हॉर्सशू मैग्नेट या बार मैग्नेट ले आए तो पूरा का पूरा आयरन विल अट्रैक्टेड. दैट इज नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन. तो पूरा आयरन सेपरेट हो सकता है, सल्फर नीचे रह जाएगा. और आपका हॉट ग्लास में रख रहे हैं आप इसको, और यू ब्रिंग द हाउस हॉर्सशू मैग्नेट. तो आपका पूरा का पूरा आयरन इस पे चिपक जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन टूवर्ड्स द मैग्नेट. एज यू नो आयरन इज अ मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड हियर सल्फर विल रिमेन एज सच. ये आपका 9th का एक एक्सपेरिमेंट है, यू माइट हैव डन इन योर लेबोरेटरीज. और अगर इनको किसी एक पर्टिकुलर, जैसे अगर 56 ग्राम इससे ले लें और सल्फर की 36 ग्राम ले लें और हीट करें तो वी विल गेट FeS, वो कंपाउंड हो जाएगा. सो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, ये एक्सपेरिमेंट क्लास 9th में करवाया जाता है. जिन्होंने किया होगा दे माइट बी रिमेम्बरिंग. सो हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, इट इज नॉट नेसेसरीली कि वो सस्पेंशन लिक्विड फॉर्म में ही होंगे, they may be in solid form also. Here your chemical classification of matter is over. Any doubt here? If you have doubt, ask me here and here only. No, ma'am. मैम सस्पेंशन मतलब क्या होता है? अब छोटी छोटी चीजें जो आपको सबको पता है, मैं एक फास्ट पढ़ा के निकल जा रही हूँ. यू ऑल नो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली. दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, तब बताया था आपको. नो, व्हाट आर एटम्स, व्हाट आर मॉलिक्यूल, व्हाट आर आयंस? लेट अस सी. Atoms, as I told, it is that smallest particle of matter which take part in chemical combination. ये अगर देखो, मैंने ये पहले भी बताया था कि महर्षि कन्नड़ थे जिन्होंने इस कहा था कि किसी भी सब्सटेंस को हम लगा रिपीटेडली तोड़ते जाएं. जैसे चौक को तोड़ा 2 में, फिर उसको तोड़ा 2 में, फिर अगला पार्ट लिया उसको 2 में, ऐसे तोड़ते चले गए तो आपको सबसे छोटा पार्टिकल मिलता है जिसे उन्होंने परमाणु कहा था. और उसी को ही सेम डॉक्ट्राइन वाज गिवन बाय डेमोक्राइटस एंड लूसिफस. उन्होंने उसको एटम कहा था. एटम जो वर्ड है, इट इज गिवन फ्रॉम द वर्ड एटमोस. एटम जो लिया गया है, ये एटम जो वर्ड लिया है, ये एटमोस से लिया गया है. एटमोस का मतलब है इनडिविजिबल. अब ये बहुत पुरानी बात है, 500 BC के टाइम की बात है. तो तब तो किसी को पता नहीं था कि एटम, ज्यादा डिस्कवरीज हुई नहीं थी, तो ये किसी को नहीं पता था कि एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, ये सब हमें उस समय नहीं पता था. तब उन्होंने एटम बोला था, और एटमस मतलब होता है इंडिविजिबल. तो ये मान लिया गया है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है और वो इंडिविजिबल है. ठीक है, आज भी माना जाता है कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, बट अब ये नहीं माना जाता है कि ये इंडिविजिबल है. किसी का चेक. लावण्य, is my voice not clear, beta?
Ma'am, earlier. Earlier, now it is clear. Yes, ma'am, because you were going there, that side, so it was I'm coming. not The pitch going. was low. Listen, I am not going here and there. Actually, the only a small 1.5 feet distance is there between board and camera. Okay, I am not going anywhere. But the thing is that when I write, na just turn my face little there. So I speak twice and thrice. If still problem exists, then you may send me message again. So atom Yes, जो है, ma'am. from the word atomos, as I told, it is no more indivisible. We have the fundamental or subatomic particles in atom, which are like you know very well, electron, proton and neutron. But अभी आप सबको ये भी पता है उसके अलावा भी छोटे पार्टिकल्स हैं, मीजॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, और अभी अभी डिस्कवर हुआ है कुछ 5-6-7 साल पहले हिग्स बोसॉन, जिसे गॉड पार्टिकल कहा गया. तो जो है एटम इज नो मोर इनडिविजिबल. बेटा वो आपका जो है कि मीट जो है 40 मिनट बाद बंद हो जाएगा. हम रीजॉइन करना है. Join again on the same link after 5 minutes. ओके मैम. Okay. So shall I end the session? यस मैम. Okay. You also leave and join it again. यस मैम. Where I have kept the chalk. Yes, am I audible again? यस मैम. Yes, we were talking about the atom. So how we will define the atom? Atom is the smallest particle which take part in chemical combination. Chemical combination मतलब आप सबको पता है कि कंपाउंड जो हैं वो एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, एलिमेंट्स के एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. So combination yani means they combine, they react with each other, or they make a bond to make the compounds. So these atoms are only the entities which combine. So atom do not remain free or independent in existence. So we will define them that these are the smallest particle which take part in chemical combination. They do not exist free. Okay? And they are the those particles which actually making the elements, है ना, जितने भी elements हैं उनके सबके जो particles हैं, जो elementary particle माना जाता है वो atom है. They are called as building blocks also. मतलब आपके elements जो हैं इन्हीं के बने हुए हैं, तो building blocks of matter के building blocks माने जाते हैं. Now let us see what are like how we show the atom, like atom of oxygen, atom of carbon, atom of nitrogen. ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन के मामले में थोड़ा 1 मिनट बाद बताते हैं. Now let us see what is molecule. What is molecule? Now molecule is that smallest particle which has free existence, which has independent existence. अब आप बोलोगे मैडम अभी तो आपने एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला, अब मॉलिक्यूल को बोल रहे हैं. तो मैंने दोनों को अलग अलग डिफाइन किया है. एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो अकेला नहीं रह सकता, जो फ्री नहीं रह सकता, जो केमिकल कॉम्बिनेशन में जाएगा ही. लेकिन मॉलिक्यूल वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए जाने के लिए उसको एटम में कन्वर्ट होना पड़ेगा. पहले उसको अपने बॉन्ड्स तोड़ के एटम में कन्वर्ट होना पड़ेगा. तो ये इंडिपेंडेंट रह सकता है. अब आइए यहाँ पर देखो, O जो है इट इज एटम, O ऑक्सीजन एटम.
हम उसको एक O से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें, ऑक्सीजन एटम, we represent it by O only, एक मतलब एक एटम एक O से रिप्रेजेंट किया हमने। लेकिन अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें, so here you will see it is written as O2. It is written as O2. क्यों? Because here there is a double bond between two O atom, two oxygen atom के बीच में एक double bond है। तो ऑक्सीजन जब भी नेचर में प्रेजेंट होगा वो O2 के फॉर्म में होगा, और अगर हम स्ट्रेटोस्फीयर में जाए तो ओजोन के फॉर्म में होगा। लेकिन वो ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो नेचर में जो एग्जिस्टेंस है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, either molecule of oxygen gas, or it is molecule of any other compound like calcium carbonate contain oxygen atom, your water contain oxygen atom, carbon dioxide, carbon monoxide, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब चीजें हैं जहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्डेड फॉर्म में है, मॉलिक्यूल बनाकर रह रहा है। तो मॉलिक्यूल वो छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, और एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो केमिकल कॉम्बिनेशन में जाता है। ऑब्वियसली मॉलिक्यूल जो है वो एटम का बना है, तो एटम मॉलिक्यूल से भी छोटा होगा। तो मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट होगा तो इन अ डेफिनेट रेशियो बाय मास एंड मेकिंग द कंपाउंड। एम आई क्लियर विद द टू टर्म्स एटम एंड मॉलिक्यूल? यस मैम। हर्ष, इंग्लिश बारे समझ में आ रहा है कि हिंदी में बोलना है मुझे? यस मैम, समझ में आ रहा है ना? तो अब एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बारे में हमने देख लिया। अब एटम की पहचान जो है हम किससे करते हैं? आपके पास आधार कार्ड नंबर है अपना अपना? यूएन है। नंबर यस मैम। है ना? तो जो आधार कार्ड है वो हमारी पहचान है। अगर आप सॉफ्टवेयर में जाके मेरा आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो मेरे डिटेल्स सारे आ जाएंगे, मेरा नाम, मेरा फोन नंबर, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरी एड्रेस, सब कुछ मिल जाएगा आपको मेरे बारे में, है ना? आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो आपकी जानकारी मिलेगी। तो आपका आधार नंबर जो है आपकी पहचान है। इसी तरह एक एटम के पास भी आधार नंबर है। सिर्फ समझाने के लिए, एक्चुअली उसकी पहचान, इट इज आइडेंटिफाइड बाय अ नंबर, it is identified by a number that is known as atomic number. आप सब 10th पढ़ गए हैं। 10th में आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा है। उसमें आपने पढ़ा था कि मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, उन्होंने एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। एलिमेंट्स वर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है? लेकिन उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना और लॉ बना जिसमें एटॉमिक नंबर के आधार पे एलिमेंट्स को अरेंज किया है। तो आज जो पीरियोडिक टेबल हम स्टडी करते हैं उसमें एटॉमिक नंबर के आधार पर आपका एलिमेंट अरेंज्ड है। तो एटॉमिक नंबर जो है, इट इज द आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर अ पर्टिकुलर एटम। अब ये डेफिनेशन नहीं है, ये खाली समझने के लिए। ऐसा ये किसने बताया था बेटा? स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, ई नहीं है मेरे ख्याल से। Mosley was a scientist. Actually, he was not chemist. He was physicist. Physics के फील्ड में काम करते थे। He was the person who has told that atomic number जो है वो fundamental property of an atom है। Atomic number is the fundamental property of an atom. ठीक है? क्यों फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी? क्योंकि अगर मैं एटॉम, देखो वो क्यों है वो थोड़ी देर बाद। अगर मैं बन लेती हूँ तो ये किसका एटॉमिक नंबर है? हाइड्रोजन। तो ये मैं नंबर से पहचान रही हूँ कि किस किस एलिमेंट का ये नंबर है।
तो ये नंबर उसका कहाँ से आया? इट इज फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस। जो उसके सेंटर को कुछ चीजें अगले चैप्टर का पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ टॉपिक ले रही हूँ तो आई विल बी कवरिंग हियर ओनली। ठीक है, अगला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो बहुत सारी चीजें मैं यही बताती जा रही हूँ आपको। तो इट मे बी देयर की कुछ चीजें बुक में यहाँ नहीं हो, अगले चैप्टर में हो। ठीक है, सो व्हेन आई टीच केमिस्ट्री आई क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ चैप्टर, Yes, so ma'am. don't search in your books। तो जो चीज मैं बता रही हूँ वो हो सकता है सेकंड चैप्टर में हो। तो you see here, you all know what is a nucleus and there are shells। वो ये न्यूक्लियर मॉडल दिया था रदरफोर्ड में, ये 9th में आपने पढ़ा है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और जो शेल्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इसको उन्होंने प्लानिटरी सिस्टम से, सोलार सिस्टम से या प्लानिटरी सिस्टम से कंपेयर करते हुए न्यूक्लियर मॉडल दिया था। तो जो ये प्रोटॉन है, अब आप सबको मालूम है एक कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है। कोई मेटल है तो इलेक्ट्रॉन दे देता है, कोई आपका अगर नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो दे आर एबल टू take the electron and give the electron, they may lose or gain the electron। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर फिक्स नहीं है किसी एटम के साथ। न्यूट्रॉन इज ऑल्सो मे बी गिवन, अगर आप जो एटम बॉम्ब देखेंगे ना तो वहां पे न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट होता है हर एक पार्टिकल पे। तो जब आप रिमोट दबाते हैं तो एक्चुअली एक एटम से न्यूट्रॉन निकलता है, वो दूसरे पे हिट होता है और दूसरे से निकलता है तीसरे पे, चेन रिएक्शन होती है और बहुत फास्ट होती है। तो न्यूट्रॉन इज ऑल्सो नंबर इज नॉट फिक्स। तो कौन सा नंबर फिक्स है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का नंबर फिक्स है। अगर मैं 1 बोल रही हूँ मतलब इसके पास 1 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, 2 बोल रही हूँ इसके पास 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, इसके 3 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, इसके 4 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। दिस मीन्स द नंबर हैज कम फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कहाँ से आया? फ्रॉम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। और ये नंबर फिक्स वैल्यू है, तो ये इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानी मोस्ले ने, बिकॉज द नंबर इज नॉट चेंजिंग। तो उन्होंने बोला कि हर एक एलिमेंट को एटॉमिक मास वो वेरी कर सकता है। एटॉमिक मास में वेरी बिकॉज मास नंबर में वेरी बिकॉज आइसोटोप के केस में आप सबको मालूम है, जैसे कि एलिमेंट सेम है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन 3 आइसोटोप है, तीनों का मास नंबर अलग अलग है। आप सबको मालूम है मास नंबर अलग क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग है। यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है। कैसे निकाला? मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर लीजिए तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएगा। तो बिकॉज ऑफ Yes, चेंज इन ma'am. नंबर ऑफ, हाँ yes, because of change in number of neutron their mass number changes, but atomic number is same because the number of proton is fixed. So you will see that this number is fixed value, it is come from the number of proton in the nucleus. So Mosley has taken this एटॉमिक नंबर एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जो नीचे लिखा है सबस्क्रिप्ट लिखा है वो एटॉमिक नंबर है, जो सुपर स्क्रिप्ट लिखा है वो मास नंबर है। मास नंबर अलग अलग हो सकता है सेम एलिमेंट का, वो बदल सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहता है, जैसा हमारा आधार कार्ड नंबर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है आपकी एटम की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जो फंडामेंटल नहीं है लेकिन है तो सही? मास नंबर। एम आई ऑडिबल? ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? No, ma'am. All clear. एंड No, ma'am. दिस बोर्ड इज आल्सो क्लियर? Yes, ma'am. ओके, यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट नाउ व्हाट इज मास नंबर।
Mass number is the it is also called as proton and neutron in the nucleus. It is the sum of proton and neutron in the nucleus. Since both of the particles are present in nucleus, they together are also called as neutrons. न्यूक्लियस में पाए जाते हैं इसलिए न्यूक्लियन कहते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल सम जो है दैट इज नोन एज मास नंबर. ठीक है, तो सम टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और यू कैन से total number of nucleons present in the nucleus, that is known as mass number. तो अगर हम देखते हैं वन था तो ये नीचे वाला वन एटॉमिक नंबर है, ऊपर वाला मास नंबर है. H1 2 लिखा, 2 is its mass number, 1 is atomic number. These are isotopes. ठीक है, अब what is atomic mass? Third property, what is atomic? अब एक बात बताओ, जो एटम हमें दिख ही नहीं रहा है तो उसका मास कैसे निकाल सकते हैं? कोई चीज हमें दिख रही हो तो हम मास निकाल सकते हैं, कोई चीज हमें दिख ही नहीं रही है तो मास कैसे मेजर करेंगे? एटॉमिक मास जो है इट इज ऑब्टेन्ड बाय द रेफरेंस. जैसे कि आप सबको मालूम है मोशन जो है एब्सोल्यूट नहीं होता है. इट्स नॉट अ एब्सोल्यूट, इट डजंट हैव एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज ऑलवेज रिलेटिव. जैसे कि ओरिजिन से कंपेयर किया जाता है. अगर आप कहो कि ये बोर्ड घूम रहा है क्या, इज इट इन मोशन? नो, बिकॉज आप अगर किसी चीज को रेफरेंस लेंगे तो ये अपनी जगह पर ही है, इट इज ऑन रेस्ट, तो इट इज नॉट ऑन इन मोशन. अगर उसकी जगह आप मुझे देखोगे, बोर्ड से कंपेयर करोगे, तो मैं भले ही अपनी जगह पे खड़ी हूँ लेकिन हिल डुल रही हूँ, तो आई एम इन मोशन. हाँ, अगर मैं पोजीशन बदलूं तो श्योरली आई एम इन मोशन, पर पोजीशन नहीं बदल रही हूँ, मेरे हाथ पैर अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, तो एज कंपेयर टू बोर्ड आई एम इन मोशन. तो कोई चीज को आपने ओरिजिन लिया है और उससे कंपेयर कर रहे हैं. उसी तरह यहाँ एटॉमिक मास में भी हमने कार्बन 12 is the atomic mass. कार्बन 12 is taken, कार्बन 12 आइसोटोप, यानी कार्बन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसे हमने रेफरेंस लिया हुआ है. We'll be comparing atom of any element with this. सपोज ऑक्सीजन का एटम आप उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का एटम जो है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन. कार्बन 12 का जो मास है, कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है, उसका 1/12 पार्ट जो है, उससे आप अपने ऑक्सीजन के एक एटम को कंपेयर करेंगे. जितने टाइम्स वो इस वैल्यू के वो होगा, क्या बोलते हैं, हेवियर, वो उसका एटॉमिक मास होगा. इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू. Atomic mass is a number which tell us how many times your atom is heavier than the 1/12 of the mass of one atom of carbon 12. Atomic mass जब हम निकालते हैं तो it is atomic mass equals to mass of one atom of a substance, mass of one atom of a substance upon 1/12 of the mass of C12. आपने एक एटम जो है कार्बन का, एक एटम जो है उसका 1/12 पार्ट्स करोगे, ठीक है, वो जो मास आएगा उससे आप कंपेयर करेंगे किसी भी एलिमेंट के एक एटम को. जितने टाइम वो हेवियर होगा, that will be its atomic mass. For example, we write atomic mass for oxygen 16U. That means it is 16 times heavier than the 1/12 of mass of one atom of carbon 12. For hydrogen, we write 1U. That means it is 1 time heavier than the
mass of 1/12 of the carbon 12. Am I clear? Am I clear? ये डेफिनेशन है, सिर्फ आपको ये समझना है कि जो कार्बन 12 है उसे हमने रेफरेंस एलिमेंट लिया हुआ है और उस कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से हम कंपेयर करते हैं हर एक एलिमेंट के एटम से। जितने टाइम वो उससे हैवियर होगा, भारी होगा, उतना उसका एटॉमिक मास होगा। इसका एम आई क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसकी यूनिट जो है यू लिखते हैं, यूनिफाइड मास, यू इज फॉर यूनिफाइड मास। पहले हम एटॉमिक मास लिखते थे। अर्लियर वी यूज्ड टू राइट एटॉमिक मास यूनिट AMU। आजकल AMU न लिख के हम यू लिखते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक मास को अगर आप यू में या AMU में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एटॉमिक मास कहलाता है। यदि इसी वैल्यू को आपने यू की जगह 16 ग्राम लिखा है तो इट इज ग्राम एटॉमिक मास। The term will become gram atomic mass. Same value you have expressed in different unit in grams. Atomic mass expressed in grams, that is known as gram atomic mass. Am I clear? Yes, ma'am. हम ये भी समझ में आया ग्राम। In case of molecule, we have same. You all know जो fundamental subatomic particles है वो भी देख, चलो वो बाद में देखते हैं, अभी पहले molecular mass देखते हैं। Molecular mass, अब molecular mass की definition same है। Here also we compare with 1/12 of mass of one atom of carbon 2. Here also we compare the molecule of any substance, molecule of a substance with 1/12 of mass of one atom of carbon 12. ठीक है, एटम ही लेंगे, मॉलिक्यूल नहीं लेंगे, एटम ही लेंगे। So how it is again a number which tell us how many times one molecule of a substance is heavier than the 1/12 of mass of atom of C12. For example, हम water का नाम लेते हैं 18 ग्राम, ठीक है। तो आपका 18 ग्राम यानी एक मॉलिक्यूल वाटर का 18 टाइम्स हेवियर है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर आप हाइड्रोजन का मास लेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, तो इट इज 2U। So 2AMU or 2U, it shows that it is twice heavier than the 1/12 of mass of one atom of carbon 12. This is again the similar definition. अब हम molecular mass कैसे निकालते हैं? How do we calculate the molecular mass? It's very simple. If you remember atomic mass of elements, you can find out the molecular mass. It is the sum total of all the atoms of all the sum total of atomic masses of all the atoms of all elements. जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स के एटम है, सबके एटॉमिक मास को जोड़ के आप इसके मॉलिक्यूल को मास निकाल सकते हैं। लेट अस सी हाउ। ये 18U कैसे आया, देखिए। H2O, the number of hydrogen atom is 2. कितने एटम है हाइड्रोजन के? 2। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, 2 into 1 plus ऑक्सीजन कितने हैं? 1, 1 is the oxygen. 1 atom of oxygen is there and it is multiplied by 16U. यहाँ 1U एटॉमिक मास फॉर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 16U। ये 2 जो है ये नंबर है हाइड्रोजन का और 1 जो है ये ऑक्सीजन का नंबर है। तो एक बार 2 plus 16 कितना हुआ बेटा? 18। इट इज 18U।
हाइड्रोजन का 1 होता है, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2 हो जाएगा। तो अगर आप जैसे H2SO4 निकालना, H2SO4, H का 1 S का 32U, H is having atomic mass 1U, S is having atomic mass 32U, oxygen 16U. Now can you find out? कोई निकाल के बताएगा मुझे? Calculate. Two hydrogen atoms are there. One is atomic mass plus 98 one U. is sulfur, 32 is atomic mass, 4 atoms of oxygen into 16. अब निकालिए, अब तो समझ में आ गया होगा। ये इधर हमने पीछे वाली नंबर एटॉमिक मास लिखा है, आगे वाला नंबर जितने एटम है। तो सम ऑफ ऑल द एटम्स, 98 U. हाँ 98, sum of atomic masses of all the atoms of all the elements, that is molecular mass. कैलकुलेशन ऐसा करेंगे हम। बाकी डेफिनेशन तो साइंटिफिक जो दी है वो हमने डिस्कस कर ही लिए। अगर CO2 देखिए, C का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16, बताइए कितना आएगा? हम नहीं निकालेंगे, यू विल फाइंड आउट। मैम सी की वैल्यू क्या है? हाँ जी, सी की वैल्यू दो Ma'am, लोग साथ में 44 U. 44U, 44. ठीक है। 12 plus 16 into 2, 32. 12 plus 32, it will be 44U. So this way we calculate the molecular mass. It was earlier expressed in terms of AMU, atomic mass unit. Now it is unified mass. और अगर हम ग्राम्स में बताएं, अगर आप इस चीज को ग्राम्स में बताते हैं, तो it is gram molecular mass. It is gram molecular mass. ठीक है, दो टर्म, एक मोलिकुलर मास, दूसरा ग्राम मोलिकुलर मास। अगर सेम वैल्यू आप ग्राम्स में लिखते हैं, उसी तरह कैलकुलेट होगा ग्राम मोलिकुलर मास ऑल्सो, और सिर्फ सेम चीज हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस की है, तो इट इज ग्राम मोलिकुलर मास। नाउ व्हाट इज 1 AMU? एक यूनिफाइड मास या एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? Let us see. It is the mass or amount of substance exactly equal to 1/12 of the mass of one AMU is the amount of substance exactly equal to 1/12 of mass of one atom of carbon 12. जो ये टर्म है हम वो exactly equal to 1 AMU है, ठीक है। One atomic mass unit is the mass exactly equal to 1/12 of the mass of one atom of carbon 12, SO2. These are the few terms related to your this जो आगे हमें पढ़ना हुआ है काम आएंगे। अब इसके अलावा और छोटी छोटी टर्म्स है, आप सबको मालूम है, एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। आपने अभी अभी मुझे देखा था, हाइड्रोजन के लिए मैंने H लिखा था, हीलियम के लिए He लिखा था, लिथियम Li, बेरिलियम बोरॉन, C for boron, C for carbon, O for oxygen. I have written few symbols. ये जो मैंने symbols लिखे हैं, they are what? They are representing one atom of an element.
एक एटम ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज सिंबल। अब सिंबल कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज शॉर्ट हैंड नोटेशन, छोटा नोटेशन है जिससे कि हम हाइड्रोजन HYDROGEN इतनी बड़ी ना लिख के स्पेलिंग हम सिंपली H लिखें तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि ये हाइड्रोजन है। हीलियम पूरी स्पेल ना लिख के हमने H ही लिखा है। दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स द, जैसे आपने कुछ लोगों के नाम देखे होंगे, किसी का नाम होता है ओम प्रकाश शर्मा, तो क्या लिखेगा? OP शर्मा, है ना। अब जैसे आपका स्कूल है इंदौर में, न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल, तो लोग क्या लिखते हैं? एब्रीविएशंस लिखते हैं ना वो लोग, है ना। हमारा स्कूल क्या लिखता है? तो ये जो एब्रीविएशंस है, शॉर्ट फॉर्म्स है ना, दे आर रिप्रेजेंटिंग, इतने बड़े नाम को छोटा सा हमने करके लिखा है। ऐसे ही हमने एलिमेंट्स को सिंबल दिए, ये एब्रीविएशंस है। यहाँ पर हम एब्रीविएशन नहीं बोलते हैं, हम इन्हें शॉर्ट हैंड नोटेशन बोलते हैं, और इसके लिए टर्म है सिंबल। तो एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, और हर किसी का सिंबल एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. फटाफट होता जाएगा। अब इसके कुछ रूल हैं। आइदर वी राइट फर्स्ट लेटर, या तो हम सिंपली पहला लेटर ले लेते हैं, या पहले लेटर और उसके बाद वाला कोई लेटर ले लेते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे हमने हीलियम का फर्स्ट और सेकंड लेटर लिया है, लिथियम का फर्स्ट सेकंड, बेरिलियम का फर्स्ट सेकंड। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका क्रोमियम क्रोमियम में अगर आप देखेंगे तो CHR होती है स्पेलिंग, फर्स्ट और थर्ड लेटर लिया है। सो वी टेक फर्स्ट लेटर, सबका फर्स्ट लेटर तो लेंगे, सेकेंड लेटर में भी सेकेंड वन और थर्ड वन, ठीक है। तो दिस डिपेंड, क्योंकि हर एक चीज का एलिमेंट का सिंबल लिया गया है, और दो, किसी का सिंगल लेटर है, किसी के दो लेटर हैं, ठीक है। और अगर आप जो आगे पढ़ेंगे ना तो ऐसे भी है, यू अन अन लियम अन ऑक्टियम, ऐसा नाम है इसका, अन ऑक्टियम। तो ऐसे भी हैं। तो वी टेक द सिंबल्स डिपेंडिंग ऑन द नेम ऑफ एलिमेंट्स। पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है, दूसरा रूल ये है। दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल लिखना है, कैपिटल अल्फाबेट, दूसरा वाला स्मॉल अल्फाबेट। ये नाम या तो उनके नॉर्मल नेम से लिया जाता है, सॉरी, ये सिंबल या तो उनके नॉर्मल नेम से लिया जाता है, या जो उनके ग्रीक और लैटिन नेम है, जैसे सोडियम, सोडियम का नाम है नेट्रियम और उसका सिंबल नेट्रियम से लिया गया है। आयरन का नाम है पैरम, तो ऐसे लिया गया है। कॉपर का नाम है क्यूप्रम, तो Cu लिया गया है। तो कुछ का तो नॉर्मल नेम से सिंबल लिए गए हैं, कुछ के सिंबल जो है दे आर टेकन देयर ग्रीक और लैटिन नेम्स, ठीक है। तो जो है ये स्क्रिप्ट हैंड में लिखना रहता है, कोई भी ऐसा नहीं, ये रॉन्ग है। नो लूप, नो कर्सिव राइटिंग, नथिंग, यू हैव टू राइट इन स्क्रिप्ट हैंड। और आपको कर्सिव हैंड में भी नहीं लिखना है, रनिंग हैंड में भी नहीं लिखना है। दिस इज रिलेटेड टू सिंबल। अब कोई भी कंपाउंड है उसमें हम सिंबल के कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे कि वाटर। अब ये देखो सिंबल, वाटर में दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का नंबर 2 है और ऑक्सीजन का 1 नंबर है। तो हमने ये इसका सिंबल, इसका वो क्या दिया, सिंबल, सिंबल के कॉम्बिनेशन को क्या लिखा है हमने, H2O। कहाँ से आया, कैसे आया? आप सबने ये 9th में पढ़ा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, क्रॉस करके निकालते हैं तो वी गेट H2O। याद आया कुछ? Yes, ma'am. जिन बच्चों को याद हो, वैलेंसी 1 मैम 7th में क्रिस क्रॉस मेथड है। So we write symbol
and the valency, and just cross the valency, we get the formula. These are called as chemical formulae. Chemical formulae are again the shorthand notations for the compounds. Short have abbreviated notation or shorthand notations for the compounds. So यहाँ पर हम जो element है along with their valency, we write the chemical formulae. ये सबको निकालना आते हैं? आप सबको आते होंगे निकालना? बनाना आते हैं? आप अपना बोलिए, दूसरे का इंतजार मत कीजिए कि जवाब दे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको वैलेंसी निकालना भी आती है ना? वैसे हम 3rd चैप्टर में वैलेंसी निकालना देखेंगे. So here not details of your atoms and molecules is over. Now, what is chemical combination? Atoms of same element or atoms of different element combine, ठीक है, and they form the molecule. अगर ऑक्सीजन से बाइंड होता है, you get the O2 molecule. It is O2 molecule. ठीक है. अगर यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, in the ratio by mass 1:8, then we get the water. मैं ये रिएक्शन नहीं लिखी है. I haven't written the reaction. I just explaining. ऑक्सीजन एटम से कंबाइन होके O2 मॉलिक्यूल बनाता है. This is the molecule of element. This is the molecule of compound. So your element may have some atoms are single, like sodium. हम सोडियम Na लिखते हैं, हीलियम He लिखते हैं. ठीक है. कुछ एलिमेंट्स जो हैं सिंगल एटम के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, तो दे आर मोनोएटॉमिक. अगर दो एटम मिलके आपके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो डायटॉमिक. So we have diatomic molecules, we have monoatomic. अगर 3 एटम जैसे ओजोन है, 3 एटम मिलके आपके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो इट इज ट्राइएटॉमिक. ठीक है. आपका फॉस्फोरस जो है टेट्राएटॉमिक और सल्फर जो है ऑक्टाएटॉमिक. तो 3 के बाद हम सभी को पॉलीएटॉमिक ले लेते हैं. तो मोनोएटॉमिक, ये भी 9th का ही पार्ट है. मोनोएटॉमिक when molecule is made up of 1 atom. When molecule is made up of 2 atoms, then it is diatomic. Molecule is made up of 3 atoms, here also 3 atoms, it is triatomic. Molecule is made up of 4 atoms, tetraatomic. Molecule is made up of 8 atoms, it is octaatomic. So we have molecules monoatomic, diatomic, triatomic, tetraatomic, octaatomic. So usually after diatomic we take it polyatomic. मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक. कितने एटम मिलके आपके मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसे हम बोलते हैं एटॉमिसिटी. The number of atoms which make your molecule is known as atomicity. We have molecule monoatomic, diatomic, triatomic. भले वो सेम एलिमेंट के हो चाहे अलग एलिमेंट के हो. ठीक है. जैसे वाटर है, इट इज ट्राइएटॉमिक. H2SO4 अगर आप देखेंगे तो 4 ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है और 2 हाइड्रोजन है. तो इट इज हेप्टाटॉमिक एटॉमिक. तो हम उसको पॉलीएटॉमिक में रखते हैं. ठीक है. सो ये एटॉमिसिटी ऑन द नंबर ऑफ एटम्स, हमने ऑन द नंबर ऑफ एटम्स मेकिंग अ मॉलिक्यूल, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी वी हैव द मॉलिक्यूल्स. तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ से बने? Chemical combination of oxygen. Oh sorry, chemical combination of atoms. Atoms के chemical combination से बनते हैं. So there are some laws for chemical combination which were given by Lavoisier.
Anthony Lavoisier was a scientist who is considered to work on this chemical combination. So he come out with many laws, but he alone hasn't given all the laws. Some other co-workers and his co-workers. अब इन co-workers में बहुत सारे लोग थे. Like Proust थे, Richard थे, Dalton थे, Gay-Lussac थे. So many scientists were with him, gave the laws of chemical combination. So here you have to study how many laws. Let us see. Number 1, law of conservation of mass. पढ़ा था 9th में? Have you studied it in 9th? Law of conservation of mass. ठीक है. Number 2, law of constant proportion. ये conservation word है. Law of constant proportion. Third है law of multiple proportion. Fourth is law of reciprocal proportion. And last, law of combining volumes of gases or law of gaseous volumes. So these many laws you have to study. Today time is over. We'll be taking in next class. And now today, whatever class I have taken, any doubt? Anyone? No, ma'am. Hello? No doubt? Are you satisfied with today's class? Yes, ma'am. Okay. Let me check how many of you are there. Okay. If you have any question, any query, you may ask or you may leave. Thank you for today. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye, beta.